Welcome students, myself Praveen Mishra. I am head of Mechanical Engineering Department, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's video topic is hardness test. In this video, we will discuss about hardness, what is hardness test, types of hardness test, Vinel-Rockwell, Vickers hardness test, limitation, advantage. So let's begin. What is hardness? Hardness is a very important property of material, but hard to define. It is not basic property. It appears to be more or less constant with tensile strength of material. It is defined as ability of material which resists scratching, cutting, penetration, wear and machining, etc. The hardness is also the ability of material to cut another metal. तो जब भी किसी मेटल के पीस के ऊपर मशीनिंग की जाती है उसको, तो हम देखते हैं कि यदि वो मटेरियल बहुत हार्ड है तो उस पर मशीनिंग करना इतना आसान नहीं होता है, मशीनिंग में उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और यदि मटेरियल्स की हार्डनेस कम है एज कम्पेयर टू अदर्स मटेरियल तो उसकी मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। तो ये सब हम उसके ऊपर टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि मटेरियल हार्ड है या कम हार्ड है। तो ये इसके लिए हमको कुछ टेस्ट करने होते हैं और इन टेस्ट के बारे में मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूं। A number of tests has been developed around several different phenomena. The most common of the tests are based on resistance to permanent deformation under static or dynamic loading. The most common tests are Brinell hardness test, Rockwell hardness test and Vickers hardness test. Brinell hardness test सबसे फर्स्ट टेस्ट है जो Brinell hardness test है, इसकी बात करते हैं। The Brinell hardness test was one of the earliest accepted method of measuring hardness. A tungsten carbide or hardened steel ball 1 cm in diameter is pressurized into a flat surface of the material by a standard load of 500, 1500 or 3000 kg, and the load is maintained for 5 to 10 seconds to permit the full amount of plastic deformation to occur. The load and ball are then removed and the diameter of resulting spherical indentation is measured using a traveling microscope. The Brinell hardness number is equal to the load divided by the spherical surface area of the indentation when the units are expressed as kilograms per square millimeters. BHN Brinell hardness number. BHNL निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, लोड ऑन द वॉल केजी में, सरफेस एरिया ऑफ द इंडेंटेशन mm स्क्वायर में, तो लोड ऑन द वॉल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द इंडेंटेशन। तो BHN इज इक्वल टू 2P अपॉन पाई डी, कैपिटल D माइनस अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, वेयर P लोड अप्लाइड इन किलोग्राम, कैपिटल D डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इन mm एंड स्मॉल d डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन इन mm। Brinell हार्डनेस टेस्ट के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। It cannot be used on very hard or very soft materials. The test is not valid for case hardened surface. The test must be conducted far enough from the edge of the material that no edge plugging can occur. The subsequent indentation may be objectionable on certain finished parts. तो ये कुछ limitations थी जिसकी वजह से Brinell hardness test को बाद हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। इसमें एक डायग्राम दिखाया है आपको, ये Brinell हार्डनेस टेस्ट करने की मशीन है जिसमें कि हम कुछ कंपोनेंट्स की बात करते हैं जैसे कि इंडेंटर, एंड व्हील्स, एलिवेटिंग स्क्रू, हैंड व्हील्स, यहाँ पर माइक्रोस्कोप, यहाँ पर अपन देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से रीडिंग ले सकते हैं, लेवलर, यहाँ पर हैंगर विथ लोड्स, ये लोड्स अप्लाई करने के लिए। इसको यदि हम सैंपल के ऊपर टेस्ट करते हैं जब स्टील बॉल को, तो अप्लाइड लोड करते हैं और उसके द्वारा जो कि डायमीटर है कैपिटल जो स्टील बॉल का है, और उसके द्वारा इंप्रेशन आता है और इस इंप्रेशन को हम देखते हैं यहाँ पर स्मॉल डी सी को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से हम Brinell हार्डनेस टेस्ट को निकालते हैं, BHN नंबर निकालते हैं। अब दूसरा टेस्ट Rockwell हार्डनेस टेस्ट। द वाइडली यूज्ड Rockwell हार्डनेस टेस्ट इज सिमिलर टू Brinell हार्डनेस टेस्ट सिंस द hardness value is also determined through an indentation produced under static load. This method is faster and free from experimental errors. The Rockwell test uses a small indenter, either a small diameter steel ball or a diamond tipped cone called a braille. The indenter is first seated firmly against the
material by the application of a small load of 10 kg. This causes a very small penetration into the surface, usually elastic in nature. The indenter on the dial indicator is provided on the front of machine is set to 0, and then major load is applied to the indenter to produce a deeper penetration. After the indenting pointer has come to rest, the major load is removed with the minor load still applied. The tester now indicates the appropriate Rockwell hardness number on either a dial gauge or digital display. The number is actually an indentation of the depth of plastic or permanent penetration produced by the major load. तो इसमें हम देखेंगे डायग्राम में कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के लिए किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि हम दो लोड अप्लाई करते हैं. माइनर लोड, पोजीशन ऑफ इंडेंटर आफ्टर माइनर लोड, ये दिखाया गया. डायमंड पेनिट्रेशन लोड अप्लाई कर रहे हैं, स्टील वॉल हो सकती है, ब्रेल हो सकता है, और दूसरा मेजर लोड जो कि अप्लाई किया है. और मेजर लोड को जब रिमूव करते हैं उसके बाद इसकी रीडिंग्स को फाइंड आउट करते हैं. तो हमने रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट को देखा. एडवांटेज क्या है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की? द डायरेक्ट रीडिंग ऑफ हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड इन ए सिंगल स्टेप. इट कैन बी कंडक्टेड मोर रैपिडली. इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन. हम इसको मास प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जो कि लिमिटेशन ब्रेनर हार्डनेस टेस्ट के अंदर थी, वो इसमें लिमिटेशंस नहीं है. इट प्रोड्यूस ए स्मॉलर इंडेंटेशन दैट कैन बी इजीली concealed on the finished product or easily removed in a later operation. तो हमने देखा कि ये एडवांटेज है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के. अब बात करते हैं लास्ट टेस्ट, वीकर हार्डनेस टेस्ट. वीकर हार्डनेस टेस्ट इज आल्सो सिमिलर टू द ब्रेनर टेस्ट, बट ए स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड इज यूज्ड एज द इंडेंटर. अब इसमें देखेंगे कि जो इंडेंटर है वो स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड है. Similar to Brenner hardness number, the weaker hardness number is defined as load divided by the surface area of the indentation, expressed in units of kilogram per square millimeter. The advantage of weaker hardness approach is the increased accuracy in the determining the diagonal of square impression, as opposed to the diameter of a circle, and the assurance that even light load will produce plastic deformation. ये light load पर भी हमको सही रिजल्ट फाइंड आउट करता है. दूसरा, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है. तो हम इसको वीकर हार्डनेस टेस्ट को काफी ज्यादा यूज करते हैं हार्डनेस टेस्ट करने के लिए. अब हम बात करते हैं अट्रैक्टिव फीचर्स की. इट इज सिंपली टू कंडक्ट. इट टेक लिटिल टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटल. इट रिक्वायर्स वेरी लेस सरफेस प्रिपरेशन फॉर टेस्ट. द टेस्ट कैन बी डन ऑन लोकेशन. इट इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. इट ऑफन प्रोवाइड द रिजल्ट दैट कैन बी यूज टू एवेल्यूट द मटेरियल स्ट्रेंथ और असेस प्रोडक्ट क्वालिटी. तो वीकर हार्डनेस टेस्ट के हमने बहुत सारे एडवांटेज फीचर्स देखे, जिससे कि सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है. अब हम इस टेस्ट का जो स्क्वायर पिरामिड को यूज करते हैं उसके इंप्रेशन लाते हैं. इसके द्वारा हम यहाँ पर डायग्राम से समझ सकते हैं कि जब लोड अप्लाई किया है तो इसका एक इंप्रेशन आता है, और इसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं हार्डनेस को. तो इस तरीके से हमने टेस्ट को समझा कि हार्डनेस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उसके हार्डनेस टेस्ट करने के लिए 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज को हमने देखा. टेस्टिंग को देखा कि ब्रेनर हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, वीकर हार्डनेस के द्वारा हम हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं. तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो.